mechanics. Okay, so the basic knowledge of the engineering mechanics as well as the strength of material you must know. Okay, because all the concepts are applicable here in this structural analysis 1. Okay, so first of all we will see the basic course outcome. Okay, so there are total 6 units in structural analysis 1. Okay, and each unit is having a certain course outcome. Okay, so course outcome is defined as a description as shown on the screen. Okay, so we will see this course outcome after go through the details of the syllabus. Okay, so let us start with your syllabus first. So there are total 6 units, under which unit number 1 is a introduction of statically indeterminate structures. Under this we will see the basic concept of the static indeterminacy, analysis of the fixed beam as well as a continuous beam by 3 moment theorem, and the effect of sinking of support. Okay, so in university examination you may be asked to solve the 2 questions from unit number 1. Okay, and each question carry 13 marks, out of which you have to solve only 1 questions. Okay, then unit number 2 is based on the rolling loads. Okay, so rolling loads on the simply supported beams with concentrated and uniformly distributed loads. Okay, so basically rolling loads, this particular topic is based on the analysis of the bridges, okay, and the highway bridges and railway bridges, because on the, if you do the analysis of the bridge, either highway or railway bridge, okay, you have to consider the live load, okay, of the vehicle as a rolling load. So for that case we must understand the basic concept of the rolling loads. Okay, what are the effects of the rolling load on the structure, and because of that how bending moment and shear force will be calculated, and how the influence lines will be calculated and drawn. Okay, so under this chapter we will see the rolling loads on the simply supported beam with concentrated and uniformly loads, and the maximum bending moment, shear force, influence lines for reactions, bending moment, okay, and shear force in the simply supported beams, cantilever beam and beams with overhangs, then the influence line for the forces in the member of a simple truss for bending moment and shear force in panels of a simple trusses. Okay, so these all comes under the rolling loads. Then unit 3 is basically based on the strain energy. Okay, I think strain energy you have already seen in your physics also. Okay, so the concept is very similar here also. The principle of the basic strain energy is applicable here, and here it is applicable to the analysis of the redundant frames and the redundant trusses up to 2 degree of freedom, and the calculation for the deflection of trusses, Castigliano's theorems, Maxwell reciprocal theorems and Bette's theorems. These all theorems are applicable under this unit. Okay, then unit number 4 is buckling of columns and beams. So under this unit you will come across the Euler's and Rankine's formula. There are 2 formulas are given. Based on that you have to solve the numerical on columns and beams. And the second part under unit number 4 is the analysis of the arches. So in your syllabus 2 hinge arches are there, so analysis of 2 hinge arches is applicable, 3 hinge arches is applicable, and the calculation of shear force and normal thrust and parabolic arches are applicable under the same. Then unit number 5, it is basically based on the slope and deflection method. Okay, so based on slope and deflection method we will apply this method to calculate the
indeterminacy of the portal frame as well as the beam, okay, of the structure, and frame with a inclined leg up to 3 degree of freedom system. Then second part is approximate method, that is analysis of multi-storied frame, portal frame, cantilever, substitute frame methods. So these methods are applicable. Okay, we know that although all the loads which are comes on the structure, that is a building structure, is in the form of gravity. Okay, if you see, there are two basic types of loads. First is dead load, that is a self-weight of the structure. Second is a live load. Okay, these two loads are comes under the category of the gravity loads. But on the particular building structures or special structures like chimneys, dams, bridges, okay, there are another forces which act as a horizontal force. Okay, so these forces can be analyzed in approximate method. Okay, so this is also called as lateral force analysis methods. So under that case, we have to calculate the forces generated on the building structures, like in the form of earthquake force, wind forces. Okay, so these are the lateral forces which are generated on the buildings, and the effect of that forces we have to consider on the building, and accordingly we have to calculate the shear force and bending moment for the same. Okay, so this is a special case, that is approximate method, that we have to solve or we have to consider under unit number 5. Okay, then last is unit number 6, introduction to the flexibility method up to 2 degree of freedom. Okay, so unit number 6 is very very important. Okay, this is the most advanced method of the structure analysis, which is basically based on the stiffness matrix. Okay, because the entire syllabus of semester number 5, okay, 5th semester, that is structural analysis 2, is totally based on stiffness matrix. So the basic concept of the flexibility method is very very important for the better understanding of the structural analysis 2. So this unit is also very very important. Okay, then we are a total there are as per the university syllabus, there are total 16, I think, yes, 16 practical is given, out of which in laboratory we have to perform minimum of 10 practicals. Okay, so for the practical, if the mode of study is online, then I will going to make the video of a practical and post in your Google Classroom in the form of YouTube link. Okay, so you just go through that and understand that, and I will tell you how to read the particular readings of a particular practical at the time of practical. Okay, so there are total 10 practical that we have to perform based on the theory. So first is to find the slope and deflection of a continuous beam. Okay, so one particular instrument is there in the lab, so based on that you can easily calculate the slope and deflection of a continuous beam. Then second is to find the value of flexural rigidity for a given beams and compare with the theoretical value. Then determination or determine the moment required to produce a given rotation at one end of the beam and when other end is fixed. And second is when the other end is pin or fixed. The two conditions are there. Then fourth is to study the behavior of a different type of strut. Strut is nothing but a column, and to calculate the Euler's buckling load for each cases. And then finally for this page, practical number 5, to verify the Maxwell reciprocal theorem for a beam. Then to measure the strain in a cantilever beam, study the various types of strain gauges, plotting of influence line diagram. Okay, so out of which we will see practical number 6, then practical number 7, and we will skip this 8, 9, okay, and 10 and 11, and directly we will see
practical number 12, because this instrument is available in our lab, to find the horizontal thrust and draw the influence line of a horizontal thrust for 2 hinge arches, and to calculate the horizontal deflection at roller end in 2 hinge arches. Okay, then to measure the strain in the cantilever beam and to determine the horizontal thrust. So there are total 16 practical available as per the university syllabus, out of which we will perform or we will see the total 10 practicals. Now the most important thing is the book of reference. So there are n number of books available for SA1, structure analysis 1. I have given the 2 options, that is the theory of structure by Dr. B.C. Punmiya and advanced structural analysis by the Springer. I have also show you the links of my WordPress site, that is akifzafar.wordpress.com, under structure analysis 2. If you go to this link, you will directly get this book in PDF format. Okay, so directly download this book, out of which the Dr. B.C. Punmiya book, that is Theory of Structure by Dr. B.C. Punmiya, is a very good book. Under this, around 95% of your syllabus is covered. Okay, along with this, more and more and different authors' books are also available in our library. Okay, so you can also take the help of that. Okay, then the basic introduction part. Okay, so ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट चालू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरे को 2 से 3 चीज़ आपसे पूछना है कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस का क्लियर है क्या, क्योंकि आपको अभी SA1 में टोटली उसका एप्लीकेशन है, मतलब डायरेक्टली आपको उसको कैलकुलेट करना है, उसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यानी स्टार्टिंग से आपको पूरा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करना है, उसमें आपको उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और उसके कुछ स्टैंडर्ड केसेस जो है वो आपको पहले से पता रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पे आप आगे के न्यूमेरिकल्स जो है SA1 के वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आपको अल्टीमेटली स्ट्रक्चर्स में फाइनल आउटपुट में बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स ही कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। हाँ, देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन ऑल 6 यूनिट्स। उसकी एप्लीकेशन लगा के आपको फाइनली आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ही निकालना है और कुछ नहीं है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का बहुत पक्का होना चाहिए। तो SA1 में सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है नहीं उतना है। अच्छे से सर नहीं समझा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी थी उसकी भी, उतने अच्छे से नहीं समझा था। अच्छा, ओके। और अभी फिर एग्ज़ाम्स आपका जो रहेगा वो कैसे दोगे फिर आप? वो भी ऑनलाइन मोड में है, MCQ के फॉर्म में। उसमें भी आपको जस्ट लाइक गेट के एग्ज़ाम के जैसे ही पेपर रहेंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल रहेगा और उसमें आंसर दिए रहेंगे, जिसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है उसमें। सर उतने हाँ अच्छे से मतलब हाँ हाँ, समझ में नहीं आया है, मतलब जैसे अच्छा एक अच्छा पूरा बोलेंगे कि बेसिक क्लियर है तो उतना अच्छे से नहीं है क्लियर। अच्छा अच्छा, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो नॉलेज है, मेरे को स्पेसिफिकली उसमें बताइए। आपका ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो आपने पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन FX समेशन FY, मोमेंट इक्वल टू 0, कैसे निकालते हैं उसको, FX FY मोमेंट। क्योंकि ये जो चीज़ें बेसिक है वो सभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में लगेंगी डिटेल में। तो उसका ही आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको यहाँ पे आगे के कैलकुलेशन सॉल्व करना है पूरे। तो अगर नहीं होगा तो उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा अच्छे से। एक तो कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ें हैं जिसको आपको करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें अच्छे से उसको देखो डिटेल में, और जैसा कैलकुलेशन के टाइम हमारे न्यूमेरिकल के टाइम पे आएगा चीज़, वो मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन उसका बेसिक जो है, जैसे कुछ चीज़ याद करने वाली स्टैंडर्ड केसेस होता है, शेयर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का स्टैंडर्ड केस है आपका, तो वो चीज़ें आपको बुक के थ्रू या आपके नोट्स के थ्रू जो भी है सॉम के, उसमें से आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा है, हम लोग उसको वापस रिपीट नहीं कर सकते वापस से सॉम में जाके। स्टैंडर्ड केसेस जैसे आपका बीम है, बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा, तो उसका WL/4 जो है आपका ये बनेगा
बेंडिंग मोमेंट, उसका शेयर फोर्स निकालना है तो W/2 करके आपका कैलकुलेट डायरेक्टली हो जाता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक, यानी एकदम पूरी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, सर्टन चीज़ जो है इसमें, वो चीज़ें आपको याद रखना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपने जो अगर ट्रसेस पढ़ा होगा तो उसमें मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। और अगर सेंट्रॉइड पार्ट्स कवर हुआ होगा तो सेंट्रॉइड्स में स्टैंडर्ड सेंट्रॉइड्स क्या रहते हैं उतना पता रहना चाहिए, इतना ही होना, बाकी नथिंग एल्स। उसके बाद में सॉम के अंदर में सबसे मेन बेसिक है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैसे प्लॉट करते, कौन कौन से स्टैंडर्ड केसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग पहला यूनिट चालू करेंगे 3 मोमेंट्स थ्योरम्स का, उसमें जो फाइनल आउटपुट आप निकालोगे वो रहेगा आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ही। तो वो आपको डायरेक्टली प्लॉट करना है बेस्ड ऑन द फार्मूला। तो उसमें आप वापस कैलकुलेशन करते बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी हमको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो इवन सेम का पेपर है मोस्ट प्रोबेबली 80% कन्फर्म है कि वो ऑफलाइन रहेगा। मतलब आपको एग्ज़ाम कॉलेज में ही देना है, कॉलेज में मतलब जो आपको सेंटर मिलता है, तो उसमें आपका टोटल जो मार्क्स के हिसाब से जो होता है 80 मार्क्स का वैसा ही पेपर होगा। और SA1 एक सब्जेक्ट ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें टाइम नहीं मिलता आपको, आप वो सॉल्व करते हुए चले जाते हो, सॉल्व करते हुए चले जाते हो, आखिरी में आपका आंसर प्रॉपर नहीं मिलता, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसमें से सब छूट जाता है उसमें। तो इसीलिए इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ में जैसे हम लोग SA1 क्लियर करेंगे, जैसे जैसे यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जाएंगे, उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा लेक्चर के पहले आप उसको रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से, जो भी टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, सॉम के अंदर में सिर्फ शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और मेरे ख्याल से आपका उसमें यह था क्या, बेंडिंग स्ट्रेसेस सॉम में। आपका सॉम में बेंडिंग स्ट्रेसेस हुआ था कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस? ये सर हुआ है। उसमें बेंडिंग, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के कुछ फार्मूले होंगे, जैसे P/A M/Z वाला कुछ याद है? अभी लेटेस्ट में आपने पढ़ा होगा उसमें। क्योंकि देखो बेटा, वो आपका जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है, और आप जो अभी लास्ट यूनिट जो इसमें जो यूनिट नंबर 5 है कॉलम एनालॉजी, वो टोटल उसी पे डिपेंड है, टोटल डिपेंड है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले पे। तो अगर वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इधर ऐसे में आराम से कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप ही को आसानी रहना चाहिए, इसीलिए आपका पुराना जो चीज़ है वो चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपका। और एनालिसिस सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके कि वो आपको अप टू 5th सेमेस्टर तक ही है, यानी इसके बाद के सेमेस्टर में आपको SA2 है, उसके बाद में एनालिसिस के सब्जेक्ट ख़त्म पूरे, फिर बाद में आपको पूरे डिज़ाइन सब्जेक्ट्स हैं। तो जो बेसिक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैक्सिमम सिविल इंजीनियर लोग छोड़ देते हैं कि भैया कोई काम नहीं है अपने को, तो डिज़ाइन पे या साइट पे ही काम करना है या ऑफिस में ही काम करना है, अपने को ज़्यादा एनालिसिस से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आपका एनालिसिस पार्ट सबसे परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस से ही आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हो कि बिल्डिंग्स में कौन सा केस या कौन सा एलिमेंट सबसे क्रिटिकल है, जहाँ से आपकी मैक्सिमम बेंडिंग और शेयर निकल रहा है फोर्स। और डिज़ाइन में तो सिर्फ उसी को लेके आपको जो IS कोड के प्रोविजंस या प्रोसीजर दिए हुए हैं उसमें आपको लगा के या उसमें रख के आपको उसको डिज़ाइन करना है। लेकिन एनालिसिस अपना पक्का नहीं रहेगा तो आगे अपने को बहुत डिफ़िकल्टी होंगी, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग 100 टन के लिए डिज़ाइन होना है और आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, ओनली 50 टन के लिए डिज़ाइन कर दिया, तो वो जो रिमेनिंग 50% है उसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आपके जो बेसिक है एनालिसिस के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको
पूरा क्लियर करो अच्छे से, ठीक है। जैसा जैसा यूनिट वाइज आपका न्यूमेरिकल वाइज पार्ट आएगा मैं भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो पुराने और भी डिटेल में कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको रिफ़र करो, ठीक है, अच्छे से उसको बाय हार्ट करो, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपको आगे में न्यूमेरिकल्स में लगना है, ठीक है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को बताना है कि SA1 सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि इसके अंदर में आपको पता रहता है कि आपका आउटपुट जो रिजल्ट है वो राइट है कि रॉन्ग है, वो आपके हाथ में है, क्योंकि उसमें से क्रॉस चेक हो जाता है हर स्टेप्स में कि आप जो स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे हो उसका प्रॉपर बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा, शेयर फोर्स आ रहा कि नहीं आ रहा, बराबर इक्विलिब्रियम के हिसाब से फोर्सेस जीरो हो रही कि नहीं हो रही। एट द एंड ऑफ द आउटपुट जो आपको मिलता है वहाँ पे आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ से आप खुद ही आपका आउटपुट निकाल सकते हो कि SA1 के अंदर में जो भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए यूनिवर्सिटी में आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड मिल सकते हैं, ठीक है। बस इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ बेसिक बता देता हूँ इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का, डेफिनेशंस और उसके कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट, और उसके बाद में जो डिटेल पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। इसमें एक और चीज़ है कि जो मैंने आपको वर्डप्रेस की आईडी बताया akibzafar.wordpress.com, उसमें SA1 करके टूल दिया रहेगा, उसमें आपका बना हुआ है, उसमें SA1 का आप उसको प्लीज़ क्लिक करोगे तो उसके अंदर में आपको SA1 की लैब मैनुअल्स मिल जाएंगी, ओके। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपका जैसा प्रैक्टिकल रहेगा उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकल वाइज आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप उसकी रीडिंग नोट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो सभी लोग SA1 का जो प्रैक्टिकल है वो डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल के बाद में यही गूगल क्लासरूम में जो आपने लिंक में जिसमें ज्वाइन किया है उसमें मैं फ़ोल्डर बना दूंगा। टोटल 10 फोल्डर्स रहेंगे आपके, प्रैक्टिकल 1 सबमिशन, प्रैक्टिकल 2 सबमिशन, इस तरीके से आपका जैसा प्रैक्टिकल हो जाता है आपका रीडिंग मिल जाता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में। तो आप उसी को आपका आइदर A4 साइज़ के पेजेस में या फिर आपको प्रैक्टिकल के पेजेस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसी में जो है उसका रीडिंग का जो टेबल है, आपको राइटअप नहीं लिखना है, रीडिंग का जो टेबल है उसमें से ही आपको रीडिंग जो है लेके उसका जो अगर ग्राफ है या फिर जो भी चीज़ है आपको प्लॉट करके आपको वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के फोल्डर में सबमिट करना है, ताकि उसकी जो मार्किंग है कंटिन्यूस असेसमेंट की वो साथ साथ में आपकी हो जाएगी, ओके, ठीक है। अभी बेसिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ओके। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज़ नथिंग बट it is a determination of the effect of loads on the physical structures and their components. Structures subject to this type of analysis includes all that must withstand the loads such as buildings, bridges, aircraft and ships. And the structural analysis employs the field of applied mechanics, material science, applied mathematics and कंप्यूट द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस। देखो इसमें मैंने जैसे आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ आ गया ये आपका ये किसके लिए एम्प्लॉय एप्लीकेबल फील्ड है, अप्लाइड मैकेनिक्स ऑलरेडी आपने पढ़ चुका, मटेरियल साइंस दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन्हें मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन लगेंगे तो वो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड कंप्यूट टू द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस एंड द इंटरनल फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस, सपोर्ट रिएक्शंस, एक्सेलरेशन एंड स्टेबिलिटी। सो द रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस are used to verify the structural fitness for use, often precluding the physical test. Structural analysis is thus a key part of the engineering design of the structures. Okay, so इसका ओवरऑल जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसका आउटपुट या समरी क्या है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है आपके जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, उसको आप डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनालिसिस करना मस्ट है, मतलब इट इज़ ए प्रीलिमिनरी स्टेप्स है, ठीक है। जब तक कि आप एनालिसिस परफॉर्म नहीं करोगे कोई भी स्ट्रक्चर्स का तब तक कि आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स में आपको फुटिंग चाहिए, कॉलम चाहिए, बीम्स चाहिए, स्लैब चाहिए, तो ये जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं बिल्डिंग्स के, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द पर्टिकुलर बिल्डिंग इट विल नॉट गिव यू द डिज़ाइन। सो डिज़ाइन के लिए आपको उसका
थॉरो एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो उसके अंदर में आपका फाइनल आउटपुट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। और ये दो जो चीज़ें जो है आपकी, वो चीज़ जो है आपको लेके आपके डिज़ाइन के आउटपुट में रख के, इनपुट में रख के, वहाँ से आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चरल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड देयर मटेरियल्स. It is important for the structural engineers to be able to classify the structure, either its form or its function, or by recognizing the various elements composing that structures. So the structural element guiding the systematic forces through the material are not only such as connecting rod, a truss, a beam or a column, but also a cable, an arch, a cavity or a channel, and even an angle, a surface structure or